زاہد گیلانی ہے، گیلانی سید تھا، گیلانی سید ہے، گیلانی شہید رہے گا، گیلانی سید لوگوں کے دلوں میں بس گیا۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ہم فقیروں کا ملتا ہے شجرہ ان سے جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ سید زاہد گیلانی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ رہے گے۔ یہ وہ دیوانہ غوث اعظم ہے۔ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، اللہ کی عزت کی قسم، علی کا طرز زندگی منافقت کی بات ہے۔ میں نے غوث جلی کا ایسا دیوانہ اپنی 35 سالہ زندگی میں نعت خوانی میں کم دیکھا ہے۔ شاہ جی کہنے لگے ہم نے جمعہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرنی ہے۔ ایسا عاشق میں نے غوث اعظم کا کام ہی دیکھا ہے۔ میرا قافلہ ہمارا درگاہ غوث اعظم کی طرف چلے گا۔ جب ہم یہ سلسلہ محبت کر رہے تھے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے شاہ جی کو کپڑے پیش کیے۔ شاہ صاحب کے ساتھ جانا تھا بہتے ہوئے کربلا نہیں جا سکتا۔ یقین کریں مجھے میرا ان سے 40 سال کا ایک محبت کا، احترام کا، پیار کا رشتہ تھا۔ زخمات زخم سہنے شاہ جی تیرے بھی چھوڑے آندے، کچھ داغ دل تے پہنے تیرے بھی چھوڑے آندے۔ ایک بار آ کے مل لے دنیا تو ٹر نہ جاوا، بد ڈونگے لمبے جینے تیرے بھی چھوڑے آندے۔ پوچھے آ جدو کسے نے دیکھے تیرا حوالہ، اکھیاں چنیر بہنے تیرے بھی چھوڑے آندے۔ سید السادات سید زاہد حسین گیلانی صاحب جب دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو افتخار رضوی صاحب ساتھ تھے۔ سر کیا جذبات ہیں؟ ہر آنکھ اشکبار ہے، فضا سوگوار ہے، غم سے نڈال ہے ہر شخص، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جتنے بھی امام ہیں آگے چلے جائیں، آگے چلے جائیں۔ اللہم صلی علی کہ میرے بیٹوں نے کہا تھا کہ ایک الگ کمرہ ہونا چاہیے۔ شادی 3 دن کر تو میرے پاس میں ساری رات قاسمین میں حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد جب ہم رات کمرے میں بیٹھے تو تقریباً 2 بجے تک شاہ جی میرے ساتھ گفتگو کرتے رہے، مختلف باتیں ہوتی رہی، اہل بیت طاہر کا ذکر چھڑا۔ پھر جمعرات اور جمعہ کی شب جب ہم تیاری کرنے والے تھے فجر کی نماز، میں نے شاہ جی کے لیے مصلی بچھایا، پھر شاہ جی نے نماز فجر ادا کی۔ اس کے فوراً بعد شاہ جی کہنے لگے ہم نے جمعہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرنی ہے۔ ایسا عاشق میں نے غوث اعظم کا کام ہی دیکھا ہے۔ 1.5 گھنٹہ میرے ساتھ شاہ جی غوث اعظم کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ مجھے کہنے لگے رضوی بھائی، اس وقت کا بادشاہ پریشان ہوتا تھا جب حضور غوث اعظم کا لباس دیکھتا تھا، تو آج میں اعلیٰ سوٹ پہنوں گا اور اوپر آج جناح کیپ ڈالوں گا۔ میرا قافلہ ہمارا درگاہ غوث اعظم کی طرف چلے گا۔ جب ہم یہ سلسلہ محبت کر رہے تھے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے شاہ جی کو کپڑے پیش کیے۔ میں نے شاہ جی کے قدم چومے، میں نے کہا شاہ جی میں دروازہ بند کرتا ہوں، میں آپ کے کندھے دباتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے تیرا ایک نام ہے، میں نے آج تک کسی سے نہیں دبایا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں پاؤں دباتا ہوں، لیکن ظاہری زندگی میں مجھ سے پاؤں نہ دبائے۔ لیکن جب آپ کا انتقال ہوا، بلکہ یوں کہوں کہ شہادت سغرا، کیونکہ شالہ کوئی مسافر نہ تھی، ویتے کاک جی نہ تھی بارے ہو، لیکن جب حضور غوث اعظم کی درگاہ کی طرف ہماری تیاری تھی تو سب سے اعلیٰ لباس نکالا۔ کہنے لگے مجھے غوث اعظم سے عشق ہے، مجھے غوث اعظم سے عشق ہے۔ ہم نے جمعہ درگاہ غوث اعظم میں ادا کرنا ہے، ہم نے جمعہ مبارک درگاہ غوث اعظم میں ادا کرنا ہے۔ سامعین گرامی، جب شاہ جی قبلہ مجھے کہنے لگے جلدی کرو بیٹا، تم کپڑے چینج کرو، میں کپڑے چینج کر کے باہر نکلا ہی تھا۔ دیپال پور اکاڑا اور تمام گرد و نواح کے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہیں، غم سے نڈال ہیں۔ شہباز قمر فریدی صاحب بھی رو رہے ہیں اور افتخار رضوی صاحب بھی ساتھ تھے جب سید زاہد حسین گیلانی صاحب کی وہاں پہ جب دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو سر کیا کہنا چاہیں گے؟ ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر شخص غم سے نڈال ہے۔ پھر آپ کا جنازہ بھی ادھر ہی ہوا۔ آج
आज दीपालपुर शाह साहब के साथ जाना था, बहते हुए करबला नहीं जा और सकते। यकीन करें मुझे पता मेरा चला इनसे था 40 जहाँ साल का पूछा लोगों से एक मोहब्बत का, एहतराम का, प्यार का रिश्ता था। लेकिन हमारे साथ अल्लाह हमारे काफिले की क़यादत करते कभी हुए भी सैयद गिलानी साहब उकाड़ा से कासमैन तक पहुंचे और आज फिर शहबाज कमर फरीदी साहब मेरे साथ मौजूद थे। बोला नहीं जा रहा, आंखों में आंसू हैं और दुख और अफसोस की घड़ी है। सैयद जहद हुसैन गिलानी साहब दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। सैयद मोहम्मद जहद गिलानी जो कि दीपालपुर के गिलानी ख़ानदान के सरबराह थे और दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। उनकी अभी यहाँ पे डेड बॉडी लाई गई है और ये गिलानी ख़ानदान के सरबराह थे और ऐसी खुशनसीब शख्सियत जिनका इससे पहले नमाज जनाजा बगदाद में करवाया गया, हज़रत शेख अब्दुल कादर जलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथा मज़ार में करवाया गया और अभी दोबारा इनका नमाज जनाजा दीपालपुर में करवाया जा रहा है। हर आंख का शिकार है, दुख और अफसोस की घड़ी है। यहाँ पे बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। गौसे आज़म के कदमों में पढ़ाया गया। वो ज़ाहिद गिलानी है, गिलानी सैयद था, गिलानी सैयद है, गिलानी शहीद रहेगा, गिलानी सैयद लोगों के दिलों में बस गया। पूरी जिंदगी हमने भुला नहीं सकते। ऐसी दीबी गुफ्तगू के पूरा का पूरा काफिला शाजी के मुलफूज़ात आलिया सुनने के लिए तड़पता था। एक बोल बोलते थे, वो किसी ने क्या कहा था, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। आज पीर सैयद ज़ाहिद गिलानी के लिए मैं शेर दे रहा हूँ। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। हम फकीरों का मिलता है शजरा इनसे, जिनके कदमों में कई ताज बड़े रहते हैं। ये गौसे आज़म का शहजादा था, ये गौसे आज़म का शहजादा है। उन्हीं के कदमों में इनकी जो आखिरी दम निकले, उन्हीं के कदमों में हजारों के लोगों की मौजूदगी में इनका जनाजा हुआ। आज फिर वो जनाजा, आज मैंने हर आंख अश्कबार देखी है। दीपालपुर वालों की तरफ से एक शेर शादी के लिए पेश कर रहा हूँ कि ज़ख्मात ज़ख्म सहने तेरे बिछोड़ियाँ दे, ज़ख्मात ज़ख्म सहने। पीर सैयद ज़ाहिद गिलानी शाजी देख लो उठ के, ज़ख्मात ज़ख्म सहने शाजी तेरे बिछोड़ियाँ दे, कुछ दाग दिल ते पहने तेरे बिछोड़ियाँ दे। एक बार आके मिल है दुनिया तो टुर न जावा, बद डूंगे लंबे जैने तेरे बिछोड़ियाँ दे। पूछया जदों किसे ने देखे तेरा हवाला, अखियाँ चु नीर बहने तेरे बिछोड़ियाँ दे। जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया है। चांद का उतरा उतरा तारों ने चमकना छोड़ दिया। वो पास हमारे रहते थे, बेरुतबी बहार आ जाती थी। अब लाख बहारें आए तो क्या, फूलों ने महकना छोड़ दिया। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, सैयद ज़ाहिद गिलानी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, कल भी जिंदा रहेंगे। ये वो दीवाना गौसे आज़म है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की बात है। मैंने गौसे जली का ऐसा दीवाना अपनी 35 साल जिंदगी में नाथानी में कम देखा है, जो एक एक लफ्ज एक एक लम्हा गौसे आज़म के लिए तड़पता रहा। मैंने पूछा शाजी क्यों तड़पते हो? कहने लगा गिलानी सैयद हूँ मैं, गिलानी सैयद हूँ मैं, गिलानी सैयद हूँ मैं। अपने बाबा को मिलने के लिए आया हूँ। आखिर जुमला देना चाहता हूँ, जब मैं शाजी के कपड़े तैयार कर रहा था, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, शाजी ने मुझे एक जुमला बोला। सारे दोस्त बड़ी मोहब्बत से सुने। मुझे कहने लगे रिजवी भाई 3 साल से मुझे लोग कह रहे थे, अहमद रज़ा मुझे हर साल फ़ोन करता था, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मदीना मुनव्वरा जाऊंगा। मुझे अहमद रज़ा ने कॉल की, मैंने कहा मैं सुबह बताऊंगा। कहते रात मैंने आंख लगी तो मैंने अपने आप को हुजूर गौसे आज़म के दरबार में पाया, मैंने अपने आप को मौला हुसैन के दरबार में पाया। मैंने सुबह उठते ही अहमद रज़ा को कॉल की कि मदीना मुनव्वरा रमज़ान में जाऊंगा, तैयारी करता हूँ, मुझे गौसे जली की बारगाह में ले चलो यार। आज वो शहजादा गौसे आज़म हमारे दरमियान है, वो शहजादा बतूल हमारे सामने है। आज पूरे सोगवार दुनिया को मेरा सलाम अकीदत है। मुझे मैंने जाते हुए एक शेर सुनाया था सरदार पंछी सिंह का, वो पेश करते हुए मैं शहबाज भाई के माइक हवाले करता हूँ। मैं ये शेर दे रहा हूँ कि बेटे का गम बहुत सही, पंछी मगर रो, आंसू है तेरे पास अमानत। सुने कौन किस्सा दर्द दिल, मेरा
मेरा गम गुसार चला गया, जिसे आशनाओं का पास था वो गम गुसार चला गया। वही बज़म है, वही दुम है, वही आशिकों का हजूम है कमी तो बस मेरे पीर की, है कमी तो बस मेरे पीर की, जो तह मज़ार चला गया। सादात घराने की अजीम शख्सियत, दीपालपुर से ताल्लुक़ रखने वाले गिलानी ख़ानदान के सरबराह सैयद जाहिद हुसैन गिलानी साहब, जो कि दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए, आज उनकी नमाज जनाजा का एहतमाम किया गया है। बड़ी तादाद में चाहने वाले मुरीदैन ने शिरकत की है और ये ऐसी खुश नसीब शख्सियत हैं जिनका इससे पहले नमाज जनाजा बगदाद में हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जैलानी साहब के मज़ार के हाथा में करवाई गई और इराक़ गए हुए थे ज़ियारत के सिलसिले में, आज वापस आए हैं। 25 तारीख का वादा किया कि 25 तारीख को दीपालपुर में वापस आऊँगा। आए तो सही, लेकिन आज वहाँ पे ही जान देकर आए। तो मेरे साथ एक दीनी शख्सियत मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह। आप अंदाज़ा करें कि ये हम सारे अहले दीपालपुर के लिए इससे बड़ा सानिया कोई नहीं हो सकता। हम यही अर्ज़ कर सकते हैं, अल्लाह ताला हम सबको सब्र की तौफीक अता फरमाए। एक तवील अरसा आपने यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दी हैं, चाहे वो दीनी हो, चाहे सियासी हो, चाहे मिली हो, हर एतबार से किया। आप देख लीजिएगा, हर आँख आशिकबार आपको नज़र आ रही है। उसकी वजह वही है कि जो आपने खिदमत दी हैं अल्लाह के फजल करम से। बज़्म गुलामाने मुस्तफ़ा के सदर भी रहे हैं और 50 बरस हो गए हैं, 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की सदारत कर रहे हैं। तो 50 बरस की इस दफ़ा सेलिब्रेशन की जानी थी, लेकिन सैयद जाहिद गिलानी साहब ने, अल्लाह ताला का ये ज़ाहिर अमर है। और आप देख रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि वो सदर रहे, ताहयात सदर थे, और ये उनकी खिदमत ही हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत हैं जो भी आप यहाँ पर मुलाज़ा फरमा रहे हैं, और उसकी अल्लाह की देन है। और ये बताया जा रहा है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा करेगा, आप देख रहे हैं कि वो पूरा का पूरा मजमा जो उनके लिए आज यहाँ पर हाजिर है। DSP सर्कल दीपालपुर फयाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज सैयद जाहिद हुसैन गिलानी साहब बड़ी शख्सियत थे, दीनी शख्सियत थे और एक सियासी शख्सियत थे। दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए, नमाज जनाजा में बड़े तादाद में लोगों ने शिरकत की है। सिक्योरिटी के हवाले से क्या इक़दाम किए हैं आपने? पूरे तहसील में, हर चौक में ट्रैफिक के ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं, और जो पुलिस के मुलाजमान हैं सिक्योरिटी के हवाले से चारों तरफ उनकी भी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे के सिक्योरिटी प्लान पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट मुकम्मल किए हुए हर तरफ से।